So in last session, we have started with the network security basics topics, in which we have discussed some security basics related sniffing. We have started, right? ARP spoofing and everything we have discussed. Only introductory part we have started. So today we want to discuss the next part, that is the packet sniffing. Before starting with the packet sniffing part, we need to first revise what is packets and how exactly that the packets will be transmitted. Now we know that whenever the data will be transmitted from one machine to the another machine, that info will be transmitted in the form of packets, right? And before that also, the data will be transmitted layer wise, and that according to the layers, the form will be changed, the formats will be changed. But whenever over the network, when data will be transmitted, that will be transmitted in a blocks, and that blocks will be called as a packets. Now that each and every packet will have some sort of packet format, right? There will be one standard format is present for each and every segment or the packet, depend upon in which layer they are traveling. Now in that packet, we also know lot of information is present, like source address, destination address, that everything is present there. Now layer wise, if we want, we can simply, we can say, view the data of that packets. And if we are doing that, if we are analyzing any unauthenticated packet, we are simply, if we are analyzing the traffic which is going over the internet, it is called as the packet sniffing. So simply the act of capturing data packets across the computer network, it is called as the packet sniffing. Sniffing करना है मतलब simply you are searching for something, you are capturing something, you are analyzing something which is transmitting over the network. But it is also, it is only possible if and only if you are connected to that network. That is the main thing behind this. Means if you are sitting in the if suppose there are two different networks are available, and if you are trying to access any traffic analysis by sitting in somewhere another network, then it is not possible. If you want to analyze any particular network, then you have to be the part of that particular network. Okay, that is a very important thing. योर सिस्टम शुड बी कनेक्टेड इनटू दैट नेटवर्क. लोकल होस्ट हो, जो भी है, उस नेटवर्क में आपको कनेक्टेड रहना ही है, देन ओनली यू कैन एनालाइज योर ट्रैफिक. ओके. नाउ दिस पैकेट स्निफिंग इज नॉट ओनली, मतलब अटैकर ही ये सब करते हैं एंड फॉर बैड पर्पज ओनली. दिस इज नॉट लाइक दैट. पैकेट स्निफिंग कैन बी डन फॉर द, we can say, healthy purpose also. जैसे कि the packet sniffing can be done by your ISPs, your internet service providers. They always used to find out or try to analyze the traffic which is going through the network which they are providing. Okay, internet service providers they use. Then your एडवर्टाइजमेंट जो हमें आते रहते हैं, एडवर्टाइजर्स जो एजेंसीज रहती हैं, दे यूज टू एनालाइज दैट ट्रैफिक because they wanted to just grab the information about their customers ki, in which or we can say in which product they are interested in, and for that, for searching purpose, they use to do packet sniffing. Also, governments also use this terminology. The government also checks the entire networks, whatever the service providers are providing through them. They used to analyze the traffic, so that whether any malware functionalities are going on, या फिर कोई भी अगर security वहाँ पे कोई harm हो रही है नहीं हो रही है, that will be changed by that will be checked by the government sites also. Now, how we can do that? The packet sniffing is possible by using some of the tools. That is, you can use a TCP dump also. If you are present on the Unix Linux system also, you can use a TCP dump to analyze your packets. But one more very, we can say, user-friendly packet tool is packet analyzer is also there, which is the Wireshark. Or one more is there, that is Smart Sniff. अब ये Wireshark and Smart Sniff ये क्या करते हैं? Simply we have already used this tool, right, in the computer network subject. हमने प्रैक्टिकल भी इसका सॉल्व किया, एग्जीक्यूट किया था. वायरशार्क हमने एग्जीक्यूट करके देखा हुआ था. We just have to revise. Wireshark, what it does, simply it will analyze your entire traffic which is traveling through your network, right? जो भी साइट्स आप एंटर करते हो, जो भी साइट्स आप, जो भी डोमेन नेम आप एंटर करते हो, जो भी आईपी एड्रेसेस आप जिस भी आईपी एड्रेसेस से यू आर कम्युनिकेटिंग विद, that entire thing will be captured. Okay, so if any unauthenticated user who is connected into your network,
he or she can access your data. Data access करना मतलब not actually the data which is passing, but it can analyze कि किस पैटर्न का डेटा जा रहा है फ्रॉम विच सिस्टम टू द विच सिस्टम, उसका साइज कितना है, व्हाट इज द पैकेट साइज, व्हाट इज द डेटा साइज, या फिर उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है, whether it is the secured one or not secured one. अभी even if you can find out, आप एक नेटवर्क में बैठ के अगर कोई दूसरा इंसान किसी साइट पे लॉगिन कर रहा है एंड इफ दैट पर्टिकुलर साइट इज नॉट सिक्योर, या फिर कह सकते हैं HTTPS, अगर पर्टिकुलरली क्या होता है कि HTTPS के साइट्स तो मोस्ट प्रोबेबली होता है, बट जो सिर्फ HTTP वाले होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है, and in that case whatever the IDs and the passwords you are entering, that also you can capture. आप वायरशार के थ्रू इफ यू आर सिटिंग इन द नेटवर्क, तो कोई दूसरा इंसान दूसरे मशीन पे बैठ के बाय यूजिंग द सेम नेटवर्क, इफ इट इज एंटरिंग द आईडी पासवर्ड आल्सो, यू कैन वेरीफाई दैट. मतलब इंट्रूडर जो है आपका, अटैकर जो है, they can just analyze, they can capture your ID passwords also by running these tools, and this is called as the packet sniffing. Okay, how you can prevent that packet sniffing? Simply, you should use the encrypted sites only. Okay, you have to always check uh, whatever the network you are using, whatever the sites you are using, whether it is free or not, whether it is dangerous free or not, या फिर यहाँ पे कुछ issues है क्या. You have to analyze each and every time. Okay, that is scanning your network for dangers or the issues. You should be very careful. Okay, even if you don't know in details, मतलब मुझे exactly नहीं पता, बहुत ज़्यादा नहीं पता, but if you know the very basic terms also कि ये secure site है कि नहीं है, यहाँ पे अगर मैं कुछ क्लिक कर रहा हूँ तो किसी और ही साइट पे ये जंप कर रहा है क्या, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट. जब भी आप यूज कर रहे हैं, मेक श्योर यू आर यूजिंग द वेरी ट्रस्टेड साइट्स इटसेल्फ. ओके, देन ऑल्सो यूजिंग द ट्रस्टेड वाईफाई नेटवर्क्स. ऐसा नहीं कि फ्री का वाईफाई मिल गया उधर बैठ गए, हाँ वहाँ पे घंटों बिता दिए. बट रिमेंबर, वेन एवर इट इज, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि फ्री वाईफाई होता है तो इजीली हम फटाक से कनेक्ट कर जाते हैं, अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करने लगते हैं, साथ साथ टाइम पास के साथ साथ हम लोग कुछ बीच में काम आ गया तो हम यू विल ओपन द बैंक साइट. ओके, मुझे यहाँ पे मैं बैठे बैठे कुछ खा लेता हूँ तो आई विल डू सम पेमेंट थ्रू गूगल पे, थ्रू फोन पे, right? So you will use that particular the same internet also for that purpose, right? जो कि free में मिल रहा है. Now if it is free, then lot of members will be joining the using the same Wi-Fi. So it may possible, if you are connected in the same network, then someone can access your information by running this type of the packet sniffing tools. Okay, so you should also make sure कि you are using the trusted Wi-Fi networks. कहीं भी अवेलेबल मिल रहा है, इसलिए इमीडिएटली ज्वाइन हो जाओ, फिर अपने जो भी काम बचे हैं, ये डाउनलोड करना है, वो डाउनलोड करना है, ये मैं कर लेता हूँ, ऐसा मत किया करो. यूज द ट्रस्टेड वाईफाई नेटवर्क्स ओनली. ओके, एंड मेक श्योर यूजिंग you are making sure कि you are using the encrypted data, you are verifying कि ये data trustworthy है, encrypt होके जा रहा है, encrypt होके आ रहा है, कहीं loop holes तो नहीं है. Now, as a computer engineer, if you have studied computer networks, if you have studied the cryptography, you should know the basic terminologies, and at least you can मतलब उस सबको आप एनालाइज कर सकते हो अभी, राइट? सो हमेशा जब भी यूज करना नेटवर्क, तो ये सारी चीजें वेरीफाई करते रहना टाइम टू टाइम. नाउ लेट मी शो यू, let me give you the little small demo for the Wireshark. I hope the another screen is visible. Can you see the Wireshark? Yes. Okay. So this is रुक जाओ मेरे भाई. Okay, this is the home page of our Wireshark. Okay, now here if you can see, these are all we can say the interfaces which are connected with my system. ठीक है, ये सारी interfaces है जो भी मेरे system से connected है. अब बाकी सब में तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बिकॉज नो एनी नेटवर्क, या फिर आप कह सकते हो कि बाकी सबसे कनेक्टेड नहीं है. बट इफ यू ऑब्जर्व दिस वन, आई एम यूजिंग दिस माई, आई हैव कनेक्टेड माई सिस्टम विद द वाईफाई, राइट? तो यहाँ पे जो ये ट्रैफिक आ रहा है,
एंड दिस लूप बैक ट्रैफिक कैप्चर इज ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज ऑन। जब वेनेवर आपका नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो वहाँ पे आपका जो 127.0.0.e वाला जो एड्रेस रहता है वो हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहता है, बिकॉज इट इज द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू give you the features to connect or to communicate with the another servers or the another machines which are available। वो communication के लिए यहाँ पे आपका loop back एड्रेसिंग वगैरह वर्क करता है, तो ये यहाँ पे चलता रहेगा। बट ये जो इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है, जो हमारा इंटरनेट चल रहा है, दिस इज आई हैव कनेक्टेड विद द वाईफाई, राइट। अगर मैं कॉलेज में लैन कनेक्ट की रहती तो यहाँ से इसमें से कोई एक कनेक्शन चल रहा रहता जहाँ पे आपको ट्रैफिक ऑनगोइंग दिखता, ठीक है, ये मेरा ट्रैफिक जा रहा है, मतलब ये कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। नाउ हाउ आई कैन कैप्चर दिस सिंपली, इफ आई विल click on that if I will click on that interface, then it will start capturing the packets, okay। ये जो भी डेटा आपको मूविंग डेटा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स इमीडिएटली कैप्चर होना शुरू हो जाते हैं। इफ द ब्राउजर इज ओपन बिहाइंड या फिर बैकग्राउंड में भी अगर कुछ चल रहा है, देन एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड हियर। सो लेट मी जस्ट स्टॉप दिस कैप्चरिंग हियर ऑन द टॉप मोस्ट मेन्यू हियर। यहाँ पे जो दिख रहा है ये वायरशेल का साइन है, यहाँ से यू कैन स्टार्ट द कैप्चरिंग पैकेट्स। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट। सो उसके साइड में आपको एक रेड बटन दिखेगा फ्रॉम वेयर यू कैन स्टॉप कैप्चरिंग द पैकेट। सिंपली आई हैव स्टार्टेड स्टॉप दिस। नाउ इफ आई वांट टू जस्ट आई जस्ट वांट टू वेरीफाई, या फिर किसी भी एक पैकेट को मुझे क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। ये सारे डिफरेंट पैकेट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यू कैन मतलब दिस इज द पैकेट्स नंबर। ये जो फर्स्ट कॉलम दिख रहा है आपको, कितने टोटल पैकेट्स कैप्चर हुए हैं, ये पैकेट नंबर है, ठीक है। देन यू हैव द टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइम, कौन से टाइम पे, कौन से डेट पे ये आपका पैकेट कैप्चर हुआ। देन फ्रॉम व्हाट इज द सोर्स एड्रेस ऑफ दैट पैकेट, मतलब कहाँ से कहाँ के लिए गया, सोर्स एंड द डेस्टिनेशन इज ऑल्सो मेंशन हियर, ठीक है। सो इवन इफ the request has been sent from your system to the another, then also it will be captured। even if the responses या फिर कोई भी info जो बाहर से अंदर आ रही है, that is also it will be captured as a source and destination, you can find out। then by using which protocol that particular packet has been transmitted, it is mentioned under this protocol, okay। protocol वाला जो कॉलम है यहाँ पे TCP यूज हुआ है या फिर आपका UDP प्रोटोकॉल यूज हुआ है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर DNS से रिलेटेड जो भी पैकेट रहता है उसमें आपको ये वाले वर्जन्स का पैकेट्स मिलेगा। Now HTTP, UDP, this type of the all protocols you can see here, जो यूज करके यहाँ पे पैकेट ट्रेवल हुए हैं। Then what is the actual length of your packet? Then some basic info will be present in front, मतलब पहले वाला जो मेन्यू है यहाँ पे, ये जो लेयर है यहाँ पे आपको दिखेगी कुछ बेसिक इन्फो दिखेगी, जैसे कि कुछ यहाँ पे साइट के नाम भी दिख जाते हैं, यूट्यूब दिखेगा, गूगल दिखेगा, मूडल दिखेगा। इफ आई हैव सर्च यहाँ पे इमीडिएटली वो विजिबल हो जाता है ना। इफ आई वांट टू ऑब्जर्व दिस, I want to analyze this particular packet in very detail. Suppose let me start my browser here. I will open my browser and then I will start capturing the packets here. This is to start capturing packets, okay. Internet control plus. This is visible, right? पढ़ने लायक है ना? तो अभी मैंने ये स्टॉप किया हुआ था कैप्चरिंग। अब मैं वापस से यहाँ जाके क्या कर रही हूँ, स्टार्ट कैप्चरिंग द पैकेट। सो इट इज ऑल्सो दैट इज वन मोर फीचर कि आप जो भी आपने ये स्टोर किया था, अभी स्टॉप किया था ना कैप्चर करना डेटा, सो यू कैन स्टोर ऑल्सो कि आप लेटर ऑन इसको एनालिसिस करें, आप बाद में उसका वेरिफिकेशन करें, या फिर आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं कि आज दिन भर में मेरे नेटवर्क में इतना ट्रैफिक था, ये पैकेट्स कैप्चर हुए, आई वांट टू स्टोर दैट। एंड फिर 2 दिन के बाद मैं वापस से दिन भर का डेटा कैप्चर करूंगी, उसमें और आज में क्या फ़र्क है, कुछ नए एंट्रीज दिख रहे हैं क्या, मतलब यू कैन डू द एनालिसिस, ओके, बाय स्टोरिंग दैट डेटा ऑल्सो। नाउ करंटली आई एम नॉट स्टोरिंग दैट, continue without saving, so it will start capturing the new data, okay, immediately it will start। तो अभी मैंने इधर ब्राउजर स्टार्ट किया है। सपोज आई एम एंटरिंग एनीथिंग लाइक गूगल, ओके, इधर गूगल स्टार्ट किया, फिर इधर मॉडल स्टार्ट किया, फाइन। लेट मी गो बैक टू दिस, ओके। नाउ यहाँ पे वो डेटा कैप्चर हो चुका होगा। नाउ आई विल स्टॉप
capturing. I want to just analyze whatever captured till now. Now if I want to verify this, अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि कौन सा डेटा गया कौन सा नहीं गया, सपोज सिंपली इफ आई विल टेक दिस यूडीपी पैकेट ऑल्सो एंड इफ आई विल क्लिक दिस, अगर आप इसको क्लिक करते हैं सिर्फ इस पैकेट का पूरा डिटेल्स आपको दिखेगा, जो भी आपने अभी क्लिक किया एक पैकेट, सिर्फ उसी पर्टिकुलर पैकेट के बारे में पूरा डिटेल्स आएगा। और ये डिटेल्स जो आता है इट विल कम लेयर वाइज, ओके। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के लेयर वी ऑलरेडी नो, एप्लीकेशन लेयर, लाइक देन वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर एंड देन फिजिकल लेयर, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो देख रहे हैं दिस लेयर इज फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर रिलेटेड जो भी डेटा है, अगर आप इसको एरो डाउन करेंगे सो इट विल गिव द इन्फो लाइक व्हाट इज द इंटरफेस आईडी, इनकैप्सुलेशन टाइप कौन सा था, उसका टाइमिंग, कब ये कैप्चर हुआ था, एवरीथिंग, व्हाट इज द फ्रेम नंबर, फ्रेम लेंथ, दिस एवरीथिंग विल बी शोन हियर। नाउ इन द सेकेंड लेयर कौन सा होता है, डेटा लिंक लेयर, फ्रॉम बिलो आई एम टॉकिंग। सो सेकेंड लेयर आपका डेटा लिंक लेयर है। अब डेटा लिंक लेयर वी नो दैट अवर डेटा लिंक लेयर ऑलवेज डील्स विद द मैक एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस, राइट। सो जो भी आपका डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस है, सी दिस इज प्रेजेंट हियर 7844, दिस इज द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। नाउ हियर आई हैव द सोर्स मैक एड्रेस, राइट, दिस इज माय सोर्स मैक एड्रेस, then it is using the IPv4 version, fine. Now if I want to analyze the third layer information, that is network layer, and now we know network layer always deals with the IP addresses, right, logical addresses. Now here it is using the protocol version 4, that is IPv4, and the source IP address is 192.168.1.3, and my destination address is 134.224.104.31. this is my 32-bit IPv4 addresses. So what is the header length? आईपी का अगर आपको फॉर्मेट याद होगा, हमने पैकेट फॉर्मेट्स देखे हुए हैं हर एक चीज़ के, राइट, इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो वहाँ पे इंटरनेट IPv4 का कुछ एक अभी ये वर्जन 4 है, तो मतलब वहाँ पे कौन सा रहेगा, IPv4 का ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा जिसके थ्रू ये डेटा सारा कैप्चर हुआ है। नाउ जैसे कि हेडर लेंथ है इसका 20 बाइट, देन वी हैव टोटल लेंथ 1081, आइडेंटिफिकेशन, जो भी ये सारे फ्लैग्स है, ये फ्लैग्स भी होते हैं यहाँ पे, फ्रैगमेंट ऑफसेट, टाइम टू लीव मतलब that particular packet how much time it can reside into the network, ओके। ऐसा नहीं कि एक डेस्टिनेशन का एड्रेस उसको मिल गया और जब तक वो नहीं मिलता सालों साल वो बस घूमता ही रह जाएगा नेटवर्क में, इट शुड नॉट हैपन, राइट। तो वहां पे क्या हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो देयर विल बी लॉट ऑफ ट्रैफिक अवेलेबल इन द नेटवर्क। अगर हम किसी को रोक ही नहीं रहे हैं कि यहाँ तक ही सर्च करो, आज पूरे दिन में ही सर्च करो और बात खत्म करो, नहीं मिला कोई बात नहीं, बात खत्म करो। इफ यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग योर पर्टिकुलर पैकेट फॉर पर्टिकुलर टाइम इन द पर्टिकुलर टाइम लिमिट, देन योर ट्रैफिक विल बी इंक्रीज्ड, राइट, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लमजी बन जाएगा नेटवर्क। तो यहाँ पे आपका टाइम टू लीव मेंशन होता है कि कितने टाइम तक आपका पैकेट जो है मूव करेगा टिल इट रीचेस टू द डेस्टिनेशन। अगर इसने मतलब इट इज नॉट नेसेसरी ना कि सोर्स से निकला तो डायरेक्ट डेस्टिनेशन के पास ही उसको मिल जाएगा। इन बिटवीन यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ मशीन्स, यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ सोर्सेस, राइट। तो जैसे ही वो एक इंटरमीडिएट किसी राउटर के पास या इंटरमीडिएट किसी वी कैन से किसी भी स्विच के पास अगर उसने जंप किया तो वहां पे ये एक से काउंट कम हो जाता है, ठीक है, एक से काउंट कम हो जाता है। और जैसे ही ये जीरो पे चला गया और टिल अगर उसको डेस्टिनेशन नहीं मिला है, देन दैट पर्टिकुलर पैकेट विल बी डिस्कार्डेड, ओके। दिस इज द टाइम टू लीव। नाउ हियर इट इंक्लूड्स यूडीपी, मतलब इस पैकेट में अब अभी आपका नेक्स्ट वाला जो है, लेट मी टेल यू, ओके, यहाँ पे चेकसम, हेडर चेकसम, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये सब भी है। नाउ ये जो नेक्स्ट, ये सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये आपके आईपी के एड्रेसेस है। हेडर चेकसम वी नो कि जब भी द पैकेट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर, वन mathematical calculations will be done on the particular present data and some newly value added information will be created, मतलब एक कोड जनरेट किया जाता है, जैसे हैश कोड जनरेट किया जाता है, so that it can be verified at the receiver side कि whether it is whether I have received the correct data, actual data or not, right, whether there is any changes in the received data or not, that can be verified by using the checksum. Now if you will observe the next layer, that is the user datagram protocol. अभी ये वाला जो next layer है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके पास दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, आइदर टीसीपी या तो होता है आपके पास यूडीपी।
अगर कनेक्शन लेस सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है तो यूडीपी, कनेक्शन ओरिएंटेड है तो इट विल बी यूजिंग टीसीपी. नाउ हियर वी आर यूजिंग द यूडीपी. So and we know that at transport layer address which it is using, transport layer क्या करता है, आपका प्रोसेस टू प्रोसेस सर्विसेज देता है. ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे जो आपके सारे लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे डेस्टिनेशन मतलब सोर्स टू सोर्स आपका सर्विस प्रोवाइड होता है नेटवर्क लेयर में. सोर्स टू सोर्स मतलब इस सोर्स से मुझे आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस सोर्स एंड एंड अप टू द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस. ओके, अब डेस्टिनेशन आईपी के अंदर उस पर्टिकुलर प्रोसेस तक वो इन्फो पहुंचनी चाहिए, उसका उससे कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ वो सोर्स तक ही वहां पे उसका काम लिमिटेड रहेगा. बट योर transport layer, what it does, it gives the services like process to process. Okay, and for that purpose it uses the port number. We know that in each layer there are some addresses which we use, right? जैसे कि एप्लीकेशन लेयर में हम डोमेन नेम यूज करते हैं एज अ एड्रेस, ट्रांसपोर्ट लेयर में हम पोर्ट नंबर यूज करते हैं, नेटवर्क लेयर में हम आईपी एड्रेसेस यूज करते हैं, राइट? फिजिकल लेयर में हम या फिजिकल या डेटा लिंक, हम दोनों में भी क्या क्या यूज करते हैं, मैक एड्रेसेस, मतलब आपके फिजिकल एड्रेसेस यूज करते हैं. सो यहाँ पे दिस इज द ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा इन्फॉर्मेशन. सो यहाँ पे क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर है एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है. In your one system you will be having a lot of processes running, मतलब multiple lot of नहीं but multiple processes might be running, right? So कौन से process का request का response कौन से process को देना है, that should be that is मतलब ये कह सकते हैं उसको अलग अलग किया जा सकता है by using the port, right? This is the source port number, this is the destination port number and this is 16 bit. पोर्ट नंबर कितने बिट का होता है, 16 बिट का. आईपी एड्रेसेस 32 बिट के, मैक एड्रेसेस 48 बिट के. अगर IPv4 है तो वो 34 है, IPv6 है तो वो IPv6 है तो कितना, एनीवन रिमेंबर? IPv6 होता है तो कितने बिट का होता है डेटा एड्रेस, सॉरी. ओके मैम 128. वेरी गुड लवली, इट इज 128. अगर IPv6 है तो 128, IPv4 है तो आपका 32 बिट है ना. और मैक एड्रेस अगर है तो वो 48 बिट का होता है, फिजिकल एड्रेस आपका 48 बिट का. ये जो सारे बेसिक चीजें हैं, यू शुड नो दिस, मतलब ऐसे पूछा कि आपने बताना ही चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है? तो उसके बाद अब हम कहाँ थे, हाँ फाइन. दिस इज the transport layer, this type of the information is available. Now this is your upper layer, मतलब जो भी आपका एप्लीकेशन लेयर है उससे रिलेटेड यहाँ पे डेटा आएगा. अगर मान लो ये मेरी कोई DNS या फिर HTTP रिलेटेड कोई पैकेट रहता है यहाँ पे, ये पैकेट अगर मान लो कोई HTTP का होता, किसी भी वेबसाइट रिलेटेड रहता, तो यहाँ इस एप्लीकेशन लेयर में उस वेबसाइट का नाम, उस वेबसाइट की डिटेल्स, URL एंड एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड हियर, ठीक है? Let me show you that also, but this is the information which you can analyze. Okay, anyone can analyze. मतलब ये इथिकल हैकिंग भी कह सकते हैं, लेकिन अटैकर्स जो है इसको गलत चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके का डेटा आप इन आउट कर रहे हो, कौन से वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हो, whether it is secured, not secured, whatever the login IDs and the passwords you are using, if it is visible to attacker, then मतलब हो सकता है कि वो आईडी पासवर्ड से भले ही आपका उस वेबसाइट का एक्सेस उसको नहीं मिला, मान लो कि विद दैट आईडी पासवर्ड वहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी है, या फिर OTP अगर वहाँ पे है फॉर लॉगिन, सो इन दैट केस दैट अटैकर विल नॉट बी एबल टू यूज दैट पासवर्ड, राइट? मतलब आईडी पासवर्ड तो उसको मिल गया, लेकिन लॉगिन करने के लिए OTP भी वहाँ पे एक ऑप्शन है, तो उस केस में अब OTP देके वो नहीं यूज कर सकता, दैट इज फाइन. बट वही पासवर्ड उसने सिर्फ एनालाइज किया और अटैकर ने सिर्फ उसको कहीं पे मेंशन करके रखा उसके अगले पर्पस के लिए, रिकॉर्ड के लिए. और मान लो आपसे रिलेटेड, मतलब आज अपने OTP वाला बैंकिंग का एप्लीकेशन था, लेकिन मान लो उसको कुछ और साइट्स या जीमेल उसको ओपन करना है आपका, सो व्हाट इट विल डू, जो पासवर्ड यूजुअली कैसे होता है कि लोग याद रहने के लिए सारे पासवर्ड सेम रखते हैं, 4-5 चीजों के पासवर्ड सेम रखते हैं, तो what attacker will do, that password can be used to access some different sites which is belonging to you. ओके, तो वो इस तरीके के हो सकता है. तो ऐसा भी है कि ऐसा मत करना कि हर एक चीज़ के लिए पासवर्ड सेम ही रखो और वो कहीं पे भी चलो ये तो मेरा दोस्त ही है ऐसा करके आपने उसको उसके मोबाइल में भी ये कर दिया, इसके मोबाइल में भी ये कर दिया,
हाँ मेरा इसका प्राइम वीडियो का भी पासवर्ड यही है और मेरे बैंकिंग के आईडी का पासवर्ड भी यही है। ऐसा मत करना। पासवर्ड जो भी प्रायोरिटी देना अपने सिक्योरिटी किसको मुझे ज़्यादा चाहिए, पासवर्ड हमेशा अलग रखना एंड डू नॉट शेयर। और इंक्रिप्टेड आपकी जो भी साइट्स है उसके थ्रू ही आप उसको एक्सेस करना। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू